मेंटर्स, माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने मुझे डिमांड करा था कि सर एसडी बोकनी पे एक वीडियो हो जाए, एंड आई डिड टेल यू इन माय सीमैट का वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग एसडी बोकनी पे वीडियो. In this video, we're going to talk about in detailed manner as far as SD Bookuni is concerned, but we'll talk about the most important things about the B school, which will help you to decide, whether you should be going for it or you should be opting for it, right? Now, couple of pointers that I would love to cover here, which are very important. Number one, why this college is a little bit different than the other B schools in the country. Why SD Bookuni has been able to perform really good over a period of time. We will also be talking about SD Bookuni ka placements in a detailed manner. Whatever feedback that I've got from the students community over a period of time, इनके जो alums हैं, इनके जो previous year के जो बच्चे हैं, जो currently अभी SD Bookuni में पढ़ाई कर रहे हैं, so we're going to talk about that. Number one, इनके जो programs हैं, they've got this IMB program, right? मुझे एक चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है, इनके जो curriculum जो इन्होंने डिजाइन करा है इनके MBA प्रोग्राम के लिए, that takes into consideration the global perspective. I mean, think global and apply local वाला चीज है. Because Bookuni is a brand, which actually hails from Europe itself, right? तो यार ये कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा फ्लेवर देगा एक इंटरनेशनल एजुकेशन का, और ये चीज बहुत सारे बी स्कूल्स करने की कोशिश कर रहे हैं. Those B schools who are Indian origin, they are definitely doing it. But now for the fact, this B school is international, it actually helps you to have that kind of a flavor. So that's number one. बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि ये एग्जाम्स कौन सी लेता है, ये सीटमैट वगैरह एक्सेप्ट करता है क्या? तो गाइस, जहां तक एडमिशन का सवाल है, Bookuni does not accept CMAT. It takes CAT into consideration. It takes NMAT into consideration. So guys, यहाँ पे CMAT आपके लिए नहीं होगा. They take NMAT and they take GMAT. अगर मैं वो कट ऑफ के बारे में बताऊं, तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कट ऑफ के बारे में, अगर मैं CAT के थ्रू अगर बात करूं, 83 percentile is what the score they are looking at. Not exactly cut off as such, but 83 is a good number. 83 percentile is a good number for you to fetch a call, provided आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो, right? The दूसरी बात है that the entire B school focuses a lot on the profile, which actually sets them a little apart from the other B schools in the same range, right? तो इस रेंज में जो भी B schools आते हैं उनसे थोड़ा ये हटके, बिकॉज ये ज्यादा प्रोफाइल पे बात करते हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में इस वीडियो में वो चीज भी कवर करूंगा. सो अगर हम कैट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 83 percentile is a decent number with great profile. 90 and plus can give you a good chance to get a call from SD Bookuni. Okay, that's number one. Number two, NMAT में their cutoff is around about 230. That's the number to fetch a call from SD Bookuni. अगर मैं बात करूँ apart from that, अगर let's just say आपको अच्छा खासा प्रोफाइल आपके पास है, but let's just say you don't need that particular bracket. होता है कभी कभी बच्चों को यार 88, 85, कभी कभी 83, 84 पे बच्चे आ जाते हैं, but बच्चों का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है. Then what the B school does is, then what the SD Bookuni would do is, they'll basically tell you कि भाई आप जाओ और आप हमारी Bookuni टेस्ट दे दो. अब यहाँ पे कुछ कट ऑफ का कुछ यहाँ पे लफड़ा है नहीं, एक ओवरऑल इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है, which is the best thing, जहाँ पे बच्चों की प्रोफाइल प्लस प्रोफाइल में हर एक चीज आती है यार. एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप, एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड हियर. एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपका स्कोर एसडी Bookuni का, they'll consider that, plus they'll consider CAT का स्कोर, they'll consider तुम्हारा NMAT का स्कोर, राइट? एंड उसके बाद एक ओवरऑल प्रोफाइल को गॉज करके आपको कॉल दिया जाता है. तो अगर आपको लगता है कि सर प्रोफाइल वाइज मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैंने बहुत सारी चीजें करी है, मेरे अकैड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छे हैं, मैंने सर्टिफिकेशंस करे हैं, मैंने कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करी है, प्रॉब्ली CFA लेवल 1 वगैरह, राइट? मेरी कुछ इंटर्नशिप्स हो चुकी है, मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह करे हैं, मैंने कहीं पे समर इंटर्नशिप वगैरह करी थी मेरे ग्रेजुएशन के दौरान, then I think you can definitely look out for less percentile पे getting a call from SD Bookuni, because overall जो आपका एक प्रोफाइल है वो सही से यहाँ पे होना चाहिए. एप्लीकेशन फीस इज नाउ अबाउट 2500. सो दैट्स द एडमिशन का प्रोसेस. सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे, यार सिलेक्शन में ना ये एक्चुअली PI इनका होता है, और इनके जब आप फॉर्म भरते हो, देयर आर 2 ऐसे क्वेश्चन. Those 2 ऐसे क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपेरेटिव, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब इवेंचुअली आप कॉम्पिटिशन में उतरते हो और जब इनको एक बेस्ट बच्चा चूज करना होता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान डेफिनेटली देते हैं. बट इनका PI होता है, एंड PI पे अगर आप बात करोगे तो PI पे पूरा का पूरा प्रोफाइल पे ग्रिलिंग होगा. डेफिनेटली ये बड़ा सब्जेक्टिव है, बिकॉज जैसे आपका पैनल होगा वैसे वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा. बट अगेन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि आप ऐसे अच्छे से भरो. उसमें भी यार अगर हम देखेंगे HR टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं, एंड आप PI का यू जस्ट टेक केयर ऑफ PI, यू शुड बी फाइन. तो जहां तक सवाल है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यू डोंट हैव टू गो थ्रू JD और VAT और लेट्स से केस स्टडी और केस डिस्कशन और केस एनालिसिस, so on and so forth. It's a very straightforward thing.
you have a score in the exam CAT, NMAT, and or probably your SDA Bocconi, then you have a good profile. Fill the form, write down the AC answers, go for PI, and you are done and dusted. राइट, सिंपल चीज. एक हमारी डेट्स देख लेना. ये कॉलेज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं फिलहाल बिकॉज इनके डेट्स अभी तक अवेलेबल है. सो मार्च 21 2022 तक इनके फॉर्म्स ओपन है, आप भर सकते हो. इंटरव्यूज साइड बाय साइड चलेंगे. अगर आप लास्ट हो, आपका इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च के एंड तक होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल 7th से लेके 10th तक इनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है. राइट, सो दैट्स व्हाट यू कैन थिंक अबाउट. यू नो व्हाट, ये इनका थर्ड राउंड चल रहा है इनके सिलेक्शन प्रोसेस का. अगेन आई रीहाइड्रेट, मार्च 21 इज द लास्ट डेट. आप आज भी कल भी फॉर्म भर सकते हो. आपका इंटरव्यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ होगा एंड रिजल्ट्स आपके 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में डेफिनेटली निकलेंगे. राइट, सो गाइस दिस इज द ओवरऑल आइडिया. अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत यू नो फैकल्टी के बारे में, एक चीज और यहां पे अच्छी लगी है, that there is a deadly combination of Indian and the faculties who are teaching actually students on international level. मैं मानता हूँ ये बहुत सारे बी स्कूल में होता है, यहाँ पे भी हो रहा है, बट यार एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो इंटरनेशनल फ्लेवर मिलता है. राइट, सो अगर आप उस टाइप में थोड़ा सा देखते हो कि नहीं, यू नो व्हाट, आई वुड लव टू लर्न और स्टडी यू नो फ्रॉम दिस इंटरनेशनल यू नो फैकल्टीज जो यूरोप के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को पढ़ाते हैं या फिर प्रॉब्ली यूएस यूके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को पढ़ाते हैं. बिकॉज यार यू नो ये एक चीज होती है जो एक अलग चीज आपके टेबल पे लाई जाती है. आई मीन when I was doing my MBA, you know, I could see the perspective of faculties, those who are actually Indian originated faculties and those who are actually teaching you know at international university. थोड़ा तो फर्क पड़ता है. So if you are somebody who would love to have that kind of thing, go for it. जहां तक फीस का सवाल है, education loans and everything is available. मेरे ख्याल से they must be having a tie-up with some banks if I'm not wrong. So that HDFC, Axis, Edivans and IDFC बैंक के साथ इनका tie-up है. आगे चलेंगे, इनकी टोटल जो फीस है दैट्स अराउंड अबाउट 18.60 lakhs. 18.60, राइट. नाउ यू माइट फील दैट दिस इज लिटिल हायर, बट यहाँ पे वो जो मिलान का इनका जो एक इमर्जन प्रोग्राम होता है वो ऐड करके इनका फीस थोड़ा शूट अप होता है. सर ये करना चाहिए यार, डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो. अहमदाबाद में भी बच्चे करते हैं. इट्स अराउंड अबाउट 2.5 से लेकर 3 months का प्रोग्राम होता है. यू डू MBA once, आई नो यू डेफिनेटली वांट टू हैव दिस इंटरनेशनल एक्सपोजर. एंड आजकल जहां तक यूनिवर्सिटीज का चल रहा है या फिर आजकल जहां तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिखता है, having that one line on your resume wherein you show them the international experience matters a lot. So not only यहां से कोई भी स्कूल आप देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, if you have deep pockets, मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना ब्रदर ग्रैब करना जरूरी है. So yeah, definitely you can go for that. Last but not the least is international immersion. Guys, you can go through this. It happens like the program gets conducted in 2 ways, Mumbai and Milan. Right, you can go through this, you can pause the video, probably you can go to their website. I don't want to talk about this a lot. I mean, this is one of the best point they have, but देख लो, अगर आपको ये लगता है आपको ये करना है, आपकी अगर ख्वाहिश है, then definitely go for it. Now, let's go ahead with the most important question in your mind. सर प्लेसमेंट के बारे में बता दो. चलो थोड़ा फाइनल प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, SDA Bocconi के बारे में. I've got this. अभी तक फिलहाल प्लेसमेंट्स इनकी ऑन है, 70% प्लेसमेंट इनकी हो चुकी है, बट ये इतना देखते हुए I wanted to focus on one thing. जब मैं इनकी ग्रोथ देखता हूं, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, I always believe in that delta कि भाई कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल मुझे आपकी ग्रोथ बताओ and I'll be more than happy if you see that growth. 2021 में 21.5 था इनका एवरेज पैकेज. इस बार अगर आप देखोगे यार मोर देन 50% की इनकी ग्रोथ है हाईएस्ट पैकेज में, दैट इज 36.19 lakhs, getting close to 36 lakhs. तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट. राइट, अगेन इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी विल बी गेटिंग टू दिस लेवल. इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर दैट यू गेट. तो अगर आप उस लेवल पे रखते हो अपनी प्रोफाइल या इंप्रूव करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक यू आर गुड. आगे चलेंगे, इनके जो टॉप 25% के बारे में बात करेंगे प्रोफाइल्स के बारे में. उसकी जो एवरेज सैलरी रिपोर्टेड है दैट्स 20.60 lakhs. ओके, फॉर टॉप 50% इट इज 17.21 lakhs. तो अगर मैं एक बात करूं, इनका इंटेक इज अराउंड अबाउट 250 बच्चा लोग. ठीक है, 250 बच्चे लोग में अगर आप अच्छा खासा परफॉर्म कर लेते हो, अपनी सीवी बिल्ड कर लेते हो, राइट, कंपटीशन होगा नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे आने वाला बच्चा एक प्रोफाइल ड्रिवन बच्चा होता है. वो एक चीज आपके लिए बहुत अच्छी है. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपके साथ अच्छे प्रोफाइल वाले बच्चे हैं, तो आपको मोटिवेशन आता है कि यू नो व्हाट, आई आल्सो वांट टू बिल्ड माय प्रोफाइल, सो दैट पीयर ग्रुप विल एक्चुअली पुश यू अप द लैडर. तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी चीज है. तो यहाँ पे आपका ROI इज गोइंग टू बी 100%. कैसे? बिकॉज यार आप अपनी फीस आराम से कवर कर सकते हो. इमेजिन जिस बच्चे को ये टॉप पैकेज लगा है, राइट, यार ही हैज मेड डबल
राइट 18 लाख देके 36 लाख उसको मिल गया. सो अगेन हर एक का अपना अपना वेज है देखने का. एवरेज अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर था एवरेज दैट वाज राउंड अबाउट 11%. इस बारी दैट इज 14%. सॉरी दैट्स 14 lakhs. राउंड अबाउट अगर मैं बात करूं 3 लाख से ये बढ़ चुका है. दैट्स राउंड अबाउट 1/3 का इनका इंक्रीमेंट है इनके एवरेज पैकेज में. 1/3 का इंक्रीमेंट इन द एवरेज पैकेज नॉट एट ऑल बैड. अगर आप कहोगे सर एवरेज है मीडियन बता दो, यार मीडियन भी अच्छा खासा है राइट. तो मीडियन इज ऑल्सो राउंड अबाउट 12.5 lakh. सो नंबर वाइज प्लेसमेंट वाइज कॉलेज लुक्स क्वाइट गुड. आगे चलेंगे. अब थोड़ा प्लेसमेंट के पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं. सर अपॉर्चुनिटीज बताओ क्या क्या आएगी. यार प्लेसमेंट में ना आप अपॉर्चुनिटीज देखो, आप ये मत देखो कितना पैसा मिलता है राइट. अब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं. नोमुरा इट्स अ टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट बैंक इन द वर्ल्ड. नंबर 1 इन जापान. It's a Japanese company by the way, right? So you are getting a chance to work with Nomura, Ernst & Young, right? ये जो companies and Microsoft, ये जो companies हैं, they actually pay very well, right? They move ahead. TVS, you've got ICICI Bank, you've got Credit Suisse, you've got Trust Suisse. See, Credit Suisse is an investment bank. Basically, they give back-end and the middle office sort of role. Trust Vista is also an upcoming company. Equity research analyst, valuation, financial modeling, consulting के rules यहाँ पे मिलते हैं. ओके मैनेजमेंट कंसल्टिंग यहाँ पे रूल्स आती है. बैंक ऑफ बड़ौदा इज देयर, एचडीएफसी इज देयर. सो ओवरऑल अगर हम प्रोफाइल देखो, अगर एक पोर्टफोलियो देखो फाइनेंस का, लुक्स गुड. कंसल्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस, ZS एसोसिएट्स, लॉट ऑफ पीपल विल कॉल इट एज ZS एसोसिएट्स आल्सो. ये जो कंपनी है ये IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड, लखनऊ, FMS, एक्सेलरा है, हर टॉप नॉच बी स्कूल पे जाती है. आई एम ग्लैड दैट आई कैन सी इट हियर. बहुत सारे जो कॉलेजेस जो एचडी बोकुने के लेवल पे अगर आप रखते हो, गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ZS एसोसिएट आपको वहां पे नहीं दिखेगा मैक्सिमम टाइम, बट यहाँ पे है. इट्स अ ग्रेट कंसल्टिंग कंपनी, कैन हेल्प यू. माइकल पेज इज वन ऑफ द टॉप कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो HR कंसल्टिंग में काम करता है. रादर दे हेल्प टू हायर CXOs, CEO, CFO, CMO, COO, something like that. So company wise they look really good. Deloitte USI, again one of the big four. There are 2 big four out here. Third working is KPMG Global. तो यार मेरे ख्याल से these companies look really good. Even there are some education companies, edtech companies coming on the campus. ITES guys, they look really good. Microsoft is there. You've got HCL, we've got Gerson, you've got Zenoti, you've got FirstSource. Even that's a challenging company. Okay, let me see. Other companies might be good. I am not really aware about them, so I'm not going to take name of them. If you know it, if you feel that they are the great brands, definitely you can go ahead with this. Logistic के बारे में बात करेंगे, Merck, that's number 1. Piramal is doing really good these days. DHL, again it's a fabulous company. Schneider Electric, great. बात करेंगे FMCG के बारे में, Swiggy, Nykaa, fabulous. H&M, great. Tolaram Group is known to give international placements. So again, overall अगर आप देखेंगे guys, so company का जो portfolio है, companies on the campus look brilliantly good. Function wise चलते हैं थोड़ा बहुत. So we've got Prodman 5%, Strategy 3%, Analytics 5%, Consult 25%, Genman 6%, Finance. By the way, SDA Bocconi is more of Genman, right? It's more of Genman. You probably can have finance का subject and like elective kind of, but it's more of a Genman kind of thing जहाँ पे marketing and consult lead करता है. अब आप बोलोगे सर consulting में मुझे नहीं जाना, मुझे finance में जाना है. कहीं ऐसा नहीं होता. Consult is a domain, it's not a specialization. कंसल्टिंग में ऑपरेशंस, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी सब टाइप के बच्चे वहां पे जाते हैं. तो प्रोफाइल को नाम दिया जाता है कंसल्टिंग. सो अगर आपको एचडी बोकुनी जाना है तो आप देख सकते हो कि यार आप मार्केटिंग और जेटमैन में एंड कंसल्ट में अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हो. दैट्स व्हाट दे आर नोन फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग आर डोमिनेटिंग ओवर देयर. दैट्स अ गुड थिंग बाय द वे. रोल्स ऑफर्ड, आई वाज गोइंग थ्रू दिस, एनालिस्ट, मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी से लेके research analyst, you have associate, management associate. The roles are given quite decent. So overall, it looks a good package. But again, I leave it up to you कि आपको चलना है कि नहीं चलना है. That's your call. अगर मैं समर के बारे में बात करूं, एवरेज स्टाइपेंड 50,700 है. ये उन कॉलेज से भी बेटर है. मैंने अभी सिम्बाइसिस वगैरह के बहुत सारे कॉलेजेस मैंने कंपेयर करे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा. अगेन आप इसका पोर्टफोलियो देख लो, कंपनीज बहुत अच्छी खासी आती है. जहाँ तक फाइनेंस कंसल्टिंग का डोमेन इज कंसर्न, हर एक इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे इट्स अ ग्रेट पोर्टफोलियो दैट आई सी बेसिकली, राइट. एक बार वीडियो पॉज करके गो थ्रू कर लेना यार, आपको पता चलेगा. हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.5 लाख भाई मेरे. हाँ, दैट्स अ गुड नंबर.
for 2 months definitely. That's around about 1.75 lakhs per month. Not that bad. Now let's talk about the final thing, which is the most important thing, scholarships. बहुत सारे बच्चे एसडी बोकोनी को लाइक करते हैं बिकॉज यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा दी जाती हैं. दो चीजें हैं, स्कॉलरशिप एंड ट्यूशन वेवर, राइट. ट्यूशन वेवर एंड स्कॉलरशिप अलग अलग होते हैं. बहुत बारी बच्चे ये पूछते हैं सर ये सेम है क्या अलग है? गाइस ये अलग अलग है. स्कॉलरशिप 2 लाख तक दी जाती है फॉर बेस्ट स्टूडेंट्स. अगर आप पहले साल अच्छा खासा परफॉर्म कर लेते हो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है, राइट. अगेन कॉलेज आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा बता पाएगा, मुझे जितना पता है मैं आपको बता पा रहा हूँ. ट्यूशन वेवर जो होता है वो 3 स्लैब में होता है, 30%, 50%, 80%. गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 30%, 50%, 80%. अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बेयर मिनिमम अगर आपको 30% भी मिल जाता है, ओवरऑल इनकी फीस देख लेना, उसके ऊपर तुम 30% कैलकुलेट करना, एंड देन जो प्लेसमेंट है अच्छी खासी वो देखना. ROI इज अमेजिंगली गुड. अगर आप ROI ड्रिवन हो तो, मैं ROI नहीं मानता हूं, मैं क्वालिटी एजुकेशन को मानता हूं, राइट. तो वो एक चीज है. देन दे हैव डीन स्कॉलरशिप जो 2 लाख तक चलती है, 11th मंथ का मॉड्यूल है इनका. देन दे हैव स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर विमेन्स लीडरशिप स्कॉलरशिप. अगर बीइंग अ गर्ल आपने कहीं लीडरशिप रोल करा है, आपने कुछ लीड करा है, एनीथिंग दैट शोज यू हैड बीन इन अ पोजीशन व्हेन यू हैव पोर्ट्रेट दैट लीडरशिप क्वालिटी, यार आपको स्कॉलरशिप मिलती है. स्पोर्ट्स एंड कल्चरल आर्ट स्कॉलरशिप इज आल्सो देयर, राइट. सो गाइस यहाँ पे इतनी सारी स्कॉलरशिप दी जाती है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड, गिव इट अ गुड शॉट. लेना ना लेना आपके पास है, आप अपेयर कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, अपेयर करो, पीआई दे दो, पूरी प्रोसेस कर दो, एंड देन ऑल्सो वॉच कि यार आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है. आपके जगह नहीं होता, अगर इतनी सारी स्कॉलरशिप मिलती, आई वुड डू द डेफिनेटली थिंग दैट फॉर्म भर दो, पीआई करो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करो, एक अच्छी खासी प्रोफाइल पोर्ट्रे करो, एंड वेट फॉर द स्कॉलरशिप. अगर मुझे स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मिलती है, एंड यस देयर आर स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ 50% स्कॉलरशिप मिली है, एक बच्चे को लास्ट ईयर 80% स्कॉलरशिप भी मिली है, राइट. तो यार अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपको लगता है कि यू नो व्हाट स्कॉलरशिप के बाद मेरा जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा, यू नो आपकी पार्टी ऑन है, ठीक है. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा. अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 21st March is the last day to fill the form. Bokuni do not consider CMAT. They accept CAT, they accept NMAT. They have their own exam which is SD Bokuni. So एक बारी go through करना पूरी वेबसाइट को, बच्चों से बात कर लेना, एलुमनी से बात कर लेना, एंड देन यू टेक योर कॉल. मुझे बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर एसडी बोकोनी का मुझे रिव्यू चाहिए. आई गो थ्रू देयर वेबसाइट, व्हाटएवर डॉक्स आई कुड कलेक्ट, आई कलेक्टेड देम, एंड हियर इज माय रिव्यू. काइंडली कमेंट करके बताना कैसे लगा. गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.